Assalamualaikum, sir. अस्सलाम वालेकुम। ओके, मैंने आज आई थिंक फरवरी मार्च 2023 का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए दिया था, असाइन किया था, और आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। यस या नो? 2023 मैंने मेंशन किया था। चले जी, बताइए प्रॉब्लम। Sir, question 7 करवा दें। Question 7. Any problem before question 7? No? So should I do directly question 7? Yes, sir. Okay, ji, here is question 7. The diagram shows a smooth track which lies in a vertical plane. The section AB is a quarter circle of radius 1.8 meter with center O. The section BC is horizontal straight line of length 7 meter, and OB is perpendicular to BC. The section CFE is a straight line inclined at an angle of theta degree above the horizontal. A particle P of mass 0.5 kg is released from rest at A. Particle P collides with the particle Q of mass 0.1 kg, which is at rest at B. Immediately after the collision, the speed of P is 4 meter per second in the direction BC. You should assume that P is moving horizontally when it collides with Q. Show that the speed of Q immediately after the collision is 10 meter per second. So यहाँ पे अगर देखा जाए तो this is A initially and this is B. So हमें प्रूव करनी है कि Q की स्पीड, show that the speed of Q नहीं, P और A और B नहीं है, P and Q है. Sorry. So P and Q, this is P and this is Q. We have to show that the speed of Q immediately after the collision is 10 meter per second. देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो लगाना है, लेकिन वो लगाने के लिए हमें आफ्टर कोलिजन अगर स्पीड ऑफ क्यू फाइंड करनी है तो बिफोर कोलिजन क्यू की स्पीड पता होनी चाहिए, वो रेस्ट पे है, वो बिल्कुल पता है। पी की स्पीड आफ्टर कोलिजन पता होनी चाहिए, 4 गिवन है। बिफोर कोलिजन क्या है, वी डोंट नो दैट। सो हाउ वी विल फाइंड द स्पीड ऑफ पी इमीडिएटली बिफोर द कोलिजन, एंड हाउ विल यू फाइंड दैट? ए से वो बी तक ट्रेवल कर रहा है, इक्वेशन ऑफ मोशन तो लग नहीं सकती, आउट ऑफ क्वेश्चन है। स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होती हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लगना चाहिए? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है,
कोई वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स नहीं है, कोई वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स नहीं है. सो इट्स सिंपली gain in kinetic energy is equal to loss in potential energy. So gain in kinetic energy mean half mass 0.5 v square is equal to loss in potential energy mass g 10 and h is 1.8. So यहां से आपके पास speed before collision आ जाएगी. So speed before collision will be under root 180. Third, yes, 6. So immediately before the collision हमें speed पता चल चुकी है कि वो 6 है. Now we can apply law of conservation of momentum. So law of conservation of momentum is immediately before collision the momentum of P is 6 into 0.5. And what's the momentum of Q? It's 0 is equal to momentum after collision. Momentum after collision. So P ka momentum after collision is 4 into 0.5. And Q ka momentum after collision is 0.1 into V. So we will get the value of VA, and this value of V should be 10. 6 into 0.5 आएगा 3. 4 into 0.5 is 2. 3 minus 2 is 1. 1 divided by 0.1 is 10. So बिल्कुल speed prove हो रही है, it is 10 meter per second. So immediately after the collision, the speed of Q is 10. So after collision हमें पता है, क्वेश्चन में गिवन था कि P की स्पीड 4 है after collision. So after collision Q की हमने स्पीड प्रूव कर ली कि it's 10. So that was A part. B part. When Q reaches C, when Q reaches C, Q किधर है? Q वहां पे था, D पे था, कोलिजन के बाद जब वो C पे पहुंचता है, अब ये स्ट्रेट पाथ है, हॉरिजॉन्टल पाथ. और क्या ये स्मूथ था? खैर डायग्राम शोज स्मूथ ट्रैक, वो तो स्टार्ट में दिया हुआ है कि सारा ट्रैक स्मूथ है. When Q reaches C, it collides with particle R of mass 0.4 kg, which is at rest at C. The two particles coalesce. So two particles coalesce, they move with a common speed. The combined particle comes instantaneously to rest at F. You should assume that there is no instantaneous change in speed as the combined particle leaves C, nor when it passes through C again as it returns down the slope, nor when it passes through C again as it returns down the slope. Okay. Given that the distance CF is 0.4 meter, the distance 0 वो straight line है, वो distance 0.4 meter है, find करनी है value of theta. CF distance है 0.4 meter और mass of R is also 0.4. So here is R. इसका mass है 0.4 kg. और ये C से जो F तक distance है, this is also 0.4 meter. Okay. हमें अगर यहाँ पे
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सॉरी लॉ ऑफ, अगर एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करें तो हमें प्रॉब्लम क्या है कि हमें काइनेटिक एनर्जी में लॉस आ रहा है और पोटेंशियल एनर्जी में गेन है। सो लॉस इन काइनेटिक इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल करना है। लेकिन उसके लिए हमें जो काइनेटिक में लॉस है, फाइनल स्पीड तो हमें पता है जीरो होगी, एफ की स्पीड जीरो होगी, इनिशियल स्पीड हमें नीचे पता। वो इनिशियल स्पीड कैसे फाइंड करेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। आपको ये बात पता है कि जब Q यहां से P और Q, आफ्टर कोलिजन Q की स्पीड क्या बनी थी? इट वाज 10। आफ्टर कोलिजन द स्पीड ऑफ Q वाज 10। सो अगर आफ्टर कोलिजन Q की स्पीड 10 है तो थ्रू आउट इसका मतलब ये स्पीड क्या होगी? ये 10 होगी, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल पैच है और प्लस इट्स अ स्मूथ ट्रैक। सो यहां पे जब Q पहुंचेगा, सो Q की स्पीड क्या होगी? 10। So I am going to apply law of conservation of momentum so that I can find the speed of Q and R right after collision. So law of conservation of momentum, momentum of Q before collision is 10 into 0.1, 0.1 mass था I think Q का, plus momentum of R is 0 is equal to, after collision एक का mass है 0.4, दूसरे का 0.1, and they are moving with the common velocities. So 0.1 v into plus 0.4 v it's 0.5 v. So 1 divided by 0.5. 2. So इसका मतलब immediately after दोनों की जो combined speed है वो है 2. अब हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ गेन इन gain in potential energy is equal to loss in kinetic. कोई वर्क डन बाय ड्राइविंग या रेजिस्टिव है ही नहीं। सो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। अच्छा, अब मैस किसका लिखेंगे हम? दोनों के कंबाइंड पार्टिकल मैस। लेकिन ना भी लिखें आप, m भी लिखें तो दोनों तरफ मैसेज आएंगे, वो तो कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन चले हम लिख लेते हैं दोनों का कंबाइंड मैस कितना बनेगा? 0.4 kg प्लस 0.1 0.5 kg, 10, एंड हाइट इज d sin थीटा, मतलब 0.4 sin थीटा, और यही sin थीटा तो कैलकुलेट करना है। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, सो हाफ मैस और स्पीड हमने फाइंड की है 2। इनिशियल आपकी v1 माइनस v2, वो जो फाइनल जब f पे पहुंचेगा उसको तो स्पीड जीरो होगी ना, v1 माइनस v स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा 30। So theta is 30 degree. जी, ये पार्ट क्लियर है सबको? आगे भी है, इसका कोई पार्ट होगा क्योंकि मैं हर वापसी की बात करेगा। थीटा ही फाइंड करना था ना इसमें, दैट्स इट। Given that CF is 0.4 meter, find the value of signal when it passes through C again as it returns down the slope. Last part is of 5 marks. Find the distance from B. Find the distance from B at which P collides the combined particle. So ये सारी इंफॉर्मेशन जो अभी तक हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये उम्मीद है आपके पास होगी। हमने फाइंड करना है डिस्टेंस
पी का फ्रॉम बी जब वो दोबारा उसका कोलिजन होगा उन कंबाइंड पार्टिकल के साथ। अब अगर आपको पिछला कंप्लीट क्वेश्चन का सिनेरियो माइंड में है तभी ये होगा। आपको सिनेरियो में थोड़ा सा फिर जरा बताता चलूं। सबसे पहले हुआ ए का बी के साथ कोलिजन। जब ए का बी के साथ कोलिजन हो चुका, उस वक्त ए की स्पीड कितनी थी? ए यहां पे था और ए की स्पीड कितनी थी? 4 आई गेस। सॉरी, पी की स्पीड कितनी थी? 4। और उस वक्त क्यू की स्पीड कितनी थी? 10। ऐसा ही है। प्लीज जरा देखते रहिए। क्यू ने ट्रेवल किया 7 मीटर यहां तक। अब कितना टाइम लगा इसको? क्यू ने 7 मीटर ट्रेवल किया, इसको कितना टाइम लगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। टाइम इज डिस्टेंस ओवर स्पीड इज 10। तो इसको टाइम लगा 0.7 सेकेंड। सी तक पहुंचने में उसको 0.7 सेकेंड लगे। सो ये टाइम 0.7 सेकेंड। फिर सी से एफ तक कितना टाइम लगा? वो टाइम कैसे फाइंड करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड कर लेंगे, क्योंकि वहां पे स्टार्ट पे स्पीड थी उन कंबाइंड पार्टिकल्स की, क्यू एंड आर की। कंबाइंड पार्टिकल की स्पीड वहां पे थी 2। इधर स्पीड थी 2, इनिशियल स्पीड उस वक्त 2 थी, फाइनल स्पीड 0 थी, और वो डिस्टेंस भी गिवन था 0.4 मीटर। ऐसे ही वो डिस्टेंस भी गिवन था। आप यहां से टाइम फाइंड कर लें। S is equal to half u plus v into t. So distance is 0.4 is equal to half. U is 2, v is 0, and time. What is the time? Time is 0.4 second. So C से F तक ऊपर जाते हुए कितना टाइम लगा? 0.4 सेकेंड। नीचे आते हुए कितना टाइम लगेगा? C से F गया, फिर F से C वापस आया, F से C वापस आया, F से C जब वापस आया, अगर ऊपर जाते हुए 0.4 सेकेंड लगे दोनों को, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं थी, एक वेट का कंपोनेंट ही था, तो F से C वापस आने में कितना टाइम लगेगा? सेम 0.4 सेकेंड। तो टोटल टाइम क्या बन गया यहां तक? 0.7 प्लस 0.4 प्लस 0.4। सो अब दोनों पार्टिकल्स, कंबाइंड पार्टिकल्स, यहां पे ऊपर स्लाइड से होके वापस आ चुके हैं, और ये टोटल टाइम कितना बन रहा है? 1.5 सेकेंड्स। अब मुझे ये देखना है कि Q जो कि R को हिट करने के बाद, इंक्लाइन प्लेन पे जाने के बाद वापस जब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पहुंचा, उस वक्त टाइम हो चुका है 1.5 सेकेंड। इस टाइम ड्यूरेशन में, इस टाइम ड्यूरेशन में P जो स्टार्ट में, वो कितना ट्रेवल करके आगे आ चुका है? ये है P। उसने कितना ट्रेवल कर लिया है? P की फाइनल स्पीड क्या थी? आफ्टर कोलिजन स्पीड क्या थी? 4। सो उसने कितना ट्रेवल किया होगा? S इज इक्वल डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। उसकी स्पीड थी 4 और टाइम 1.5 सेकेंड में वो कितना ट्रेवल कर चुका है? 4 इंटू 1.5 इज 6 मीटर। सो वो ट्रेवल कर चुका है 6 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज द पोजीशन ऑफ P। यहां पे है P और यहां पे है Q एंड R। दोनों में गैप कितना है? दोनों में अब गैप है 1 मीटर का। सो दोनों जब 1 मीटर ट्रेवल कर चुके होंगे उस वक्त कोलिजन होगा। दोनों जब 1 मीटर ट्रेवल कर चुके उस वक्त कोलिजन होगा। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय P
plus distance traveled by q and r will be equal to 1। जब ये डिस्टेंस 1 होगा तो उस वक्त कोलिजन होगा। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय p, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, स्पीड इज 4 एंड टाइम इज t। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय क्यू आर करने के लिए उसकी भी स्पीड इनटू टाइम है। उसकी एस का स्पीड क्या है, जब वो इंक्लाइन प्लेन से उतर के वापस आ रहा होगा, आ चुका होगा, उसको उसकी स्पीड होगी 2। सो 2t is equal to 1, so 6t is equal to 1, so t is 1 by 6, so t is 1 by 6। तो इसका मतलब टाइम 1 by 6 सेकंड के बाद, अब आप देखें कि जब कोलिजन होगा, जहां पे भी कोलिजन होगा, यहां पे सपोज कोलिजन हो रहा है, यहां पे दोनों का कोलिजन होगा, p इस 1 by 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, p कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, s इज इक्वल टू vt, 4 into t is 1 by 6, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, स्पीड थी 4, तो ये क्या आ रहा है, 4 by 6 मीन 2 by 3 मीन 0.6667, 0.666 में लिखता हूँ मीटर, 2 by 3 भी लिख सकते हैं, बेस्ट है वैसे। तो आप मुझे ये बताइए कि अब इस टाइम P का B पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, ये 6 मीटर प्लस 2 by 3, सो उसका डिस्टेंस होगा 6 होल 2 by 3, या इसको कह सकते हैं 6.67 मीटर। तो इस स्टेज पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय P मीन, जब उसका कोलिजन होगा P विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 6.67 मीटर फ्रॉम द पॉइंट B। जी बिल्कुल, 6 होल 2 by 3 इज द आंसर। देखिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, अगर आप हर सिचुएशन को क्लियरली अलग अलग आप समझते रहे कि क्यू ने जब ट्रेवल किया पहले आर तक, वो कहाँ तक पहुंचा, उस पर पी कहाँ पे था, तो लेंथी प्रोसीजर है, थोड़ी सी थॉट्स जरा ज्यादा चाहिए, बट उम्मीद है समझ आ गया। जी रिदा, क्लियर है क्वेश्चन 7? जर्मीना, यस, ओके जी, और क्वेश्चन कोई बताइए इस पेपर का। नो मोर क्वेश्चन? आप लोगों का एग्जाम अब टुमारो इज 30th, देन फर्स्ट और सेकंड को आपका P1 है ना, और फिर उसके बाद 7th को मैकेनिक्स है। आपका सेकंड और 7th के दरमियान भी कोई पेपर है, फिजिक्स वगैरह है? कल भी है पेपर, कल प्रैक्टिकल है, और क्या टाइमिंग है? और बाकी रिदा और जरमीना, आप लोगों के खैर इस टाइम तो कोई सर क्लास? पहला पहला पेपर मैथ्स का ही है, सेकंड को। ठीक हो गया। और सेकंड और 7th के मिडिल में पेपर्स हैं नहीं, आपके? नहीं सर। अच्छा, मेरा ख्याल है कि हमें कल और परसों जो 2 दिन हैं, हमें सिर्फ P1 डिस्कस करनी चाहिए फिर। सही है सर। तो आप कल की जो हमारी मैकेनिक्स की क्लास है, मैकेनिक्स की जो हमारी नॉर्मली 5:15 पे क्लास होती है,
उसमें आप P1 ही हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा ये कि P1 अब मेरी तरफ से कोई मैं पेपर असाइन नहीं करूंगा। मीन नेक्स्ट 2 डेज में आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, वो किसी ईयर से भी किया हुआ है, वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और पहले हमारी 5:15 पे क्लास होगी, जो कि नॉर्मली मैकेनिक्स होती है। तो 5:15 से 6:15, अगर उसके बाद क्वेरीज आपकी रह गई तो वो जो दूसरी क्लास होती है P1, उसको भी हम उस ले लेंगे। और अब आप किसी भी ईयर से जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, 2018 में कोई किया, कोई 2020 से किया, या कहीं से भी किया, आप जो भी क्वेश्चन के प्रॉब्लम होंगे वो मुझे उसी वक्त आप व्हाट्सएप करेंगे, और उनको मैं क्वेश्चंस को यहीं शेयर करके आपसे डिस्कस करूंगा। ये सही बात क्लियर है? और आज अभी हमारी क्लास होगी दूसरी, विच इज एट 7 o'clock होती है हमारी दूसरी। ये 6:15 तक जाती है, आज जल्दी खत्म हो गई है। ये 1 आवर की होती है ना, 5:15 से 6:15। सो 7 o'clock आप आ सकते हैं, अगर आपके कोई P1 के प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। राइट, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। जी, तो बताइए।